Hello students, welcome to English grammar class. I, Muhammad Ishad Anwar Khan, is going to teach you about past perfect tense. So our today's lesson is past perfect tense. You have already learned present perfect tense. Now look at the following sentences. A pair of sentences. He has burnt his feet. Present perfect tense. This is present perfect tense. Present perfect tense uses the auxiliary verb has and the past participle form of the main verb. He has burnt his feet. Present perfect tense. He had burnt his feet. Now here has is replaced by helping verb had. Has is replaced by helping verb had, and so it becomes he had burnt his feet. Now look one thing again. In the present perfect tense burnt and in the past perfect tense burnt, both are the same. That is, in this sentence, he had burnt his feet. Has is replaced by the helping verb had, and the third form of the verb is the same. This is an affirmative sentence. Now, in the second pair of sentences, we have not reached the station. This is present perfect tense, but this is negative present perfect tense. We have not reached the station. We had not reached the station. Now in this sentence, have is replaced by had, or have not is replaced by had not. And similarly, reached in the present perfect tense, and here in this sentence both are the same. So we had not reached the station. Have not is replaced by had not, and the third form of the verb is the same. Now in the last pair of the sentences, has he burnt his feet? This is interrogative sentence beginning with helping verb has. Now in this interrogative sentence, had he burnt his feet, has is replaced by helping verb had, and the third form of the verb is the same. So what do we see? We see that when the helping verb has is replaced by the helping verb had, the present perfect tense becomes the past perfect tense. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैज़ होता है, हैज़ की जगह पर अगर हम हैड का इस्तेमाल कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है. कुछ इसमें नहीं करना है. अफर्मेटिव सेंटेंस हो सिर्फ हैज़ के लिए हैड इस्तेमाल कर देंगे, और नेगेटिव सेंटेंस हैव नॉट हो या हैज़ नॉट हो उसके जगह पर हम लोग लिख देंगे हैड नॉट. और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज से या हैव से शुरू हुआ है उसके जगह अगर हम लोग हैड का इस्तेमाल कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो ही हैड बर्न्ड हिज फीट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. वी हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन नेगेटिव है. हैड ही बर्न्ड हिज फीट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज़ या हैव को जगह हम हैड लिख देंगे. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर नेगेटिव है यानी हैव नॉट या हैज़ नॉट है तो उसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे हैड नॉट, तो वो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है.
Similarly, if the interrogative sentence begins with have or has, then if you replace has or have by had, it becomes interrogative sentence in the past perfect tense. माने सिंपल बात ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हैज या हैव की जगह हम हैड नॉट हैड लिख देंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज मेड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब हैड इन प्लेस ऑफ हैज और हैव। जैसे यहां पर देखिए हैव है, यहां पर हैड हो गया, यहां हैज है, हैड हो गया, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का माने क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन हैज कंप्लीटेड लॉन्ग अगो। इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? द एक्शन हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस a past perfect tense both indicates a completed action। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस both indicate a completed action। What is the difference? The difference is in the present perfect tense the action has completed just now, but in the past perfect tense the action completed long time ago। ये हुआ एक बात। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इस चीज को बताने के लिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस बोथ टेंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस बोथ डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट, दोनों ही पास्ट इवेंट को बयान करता है। अब आप अगर किसी चैप्टर को उठा लें, किसी इंग्लिश लेसन का कोई एक चैप्टर ले लें जो कि पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करता हो, तो उसमें आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो अंग्रेजी में वो जो चैप्टर लिखा हुआ है पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, most sentences you will get written in the simple past tense. To describe a past event, most sentences are written in the simple past tense। कभी कभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहां मिलेगा। अब इसको फर्क को हमको समझने के लिए कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, आइए इसको हम अब चलते हैं, इसको हम अब देखते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। एज स्टेटेड अर्लियर, simple past tense and past perfect tense both indicate a past action, so sometimes you will find a long sentence in any lesson in which one part of the sentence will be in the simple past tense and another part of the sentence will be in the past perfect tense। यानी आप जब किसी एक सेंटेंस को जब आप कोई अगर लेसन पढ़ेंगे तो कभी कभी देखेंगे कि एक बड़ा सा सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस है, जिसमें एक टुकड़ा जो है सिंपल पास्ट टेंस में है और दूसरा टुकड़ा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वो किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट द गिवन 5 एग्जांपल्स एंड फ्रॉम हियर वी विल कम टू द कंक्लूजन और कम टू द रूल। नाउ लुक, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन the train had gone। when I reached the station the train had gone। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, when I reached the station, this part of the sentence is in simple past tense and the latter part of the sentence the train had gone, this is in the past perfect tense। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। now here two events are described। first event is reaching the station and second event is
लिविंग अवे ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का निकल जाना, खुल जाना। अब इसमें देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, ये दो एक्शन है, इस पहला सेंटेंस में दो एक्शन है। अब इसमें देखिए दो एक्शन में विच एक्शन हैज स्टार्टेड फर्स्ट एंड विच एक्शन फॉलोड दैट, मतलब ये दोनों एक्शन है रीचिंग और लिविंग। इसमें पहला एक्शन कौन सा हुआ है और दूसरा एक्शन कौन सा हुआ है। अगर इसको आप पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहला जो एक्शन है ट्रेन का लीव अवे करना, फर्स्ट एक्शन इज लिविंग अवे ऑफ द ट्रेन, और उसके बाद है द नरेटर का रीचिंग द स्टेशन, मैंने पहले ट्रेन चला गया, उसके बाद इस नरेटर जो है, ये स्पीकर है, स्टेशन को रीच किया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि तो क्या हम देखते हैं कि जो पहला जो इवेंट हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हैं, और जो सेकंड एक्शन है या जो सेकंड इवेंट है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हैं। मतलब व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, पहला जो एक्शन हुआ है ट्रेन का चला जाना, और दूसरा एक्शन हुआ उसका के नरेटर का पहुंचना स्टेशन। तो इसमें पहला जो एक्शन है या पहला इवेंट है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हैं, और जो दूसरा इवेंट है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हैं। दरअसल दोनों ही पास्ट है, अब दोनों ही हम इवेंट को पास्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो रिमोट पास्ट होता है, और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो नियर पास्ट होता है। रिमोट पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और नियर पास्ट इवेंट को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। दूसरा सेंटेंस देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर दो इवेंट यहां भी है, डाइंग ऑफ द पेशेंट एंड कमिंग ऑफ द डॉक्टर। तो इसमें पहला इवेंट कौन सा हुआ है, पेशेंट का मर जाना, द पेशेंट डाइड फर्स्ट एंड द डॉक्टर केम नेक्स्ट। पहले पेशेंट मर गया है, उसके बाद डॉक्टर आया, और डॉक्टर बाद में आया है। तो पहला इवेंट पेशेंट का मरना है, डाइंग ऑफ द पेशेंट, और सेकेंड इवेंट है रीचिंग ऑफ द डॉक्टर। इसलिए पहला इवेंट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हैं, और सेकंड जो इवेंट है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखे हैं। ये उसी वक्त होगा जब व्हेन टू एक्शंस नियर पास्ट एंड रिमोट पास्ट बोथ आर डिस्क्राइब्ड इन ए लॉन्ग सिंगल सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे, व्हेन टू एक्शंस, व्हेन टू इवेंट्स, या व्हेन टू पास्ट इवेंट, वन ऑफ देम बीइंग अ नियर पास्ट एंड अनदर थिंग द रिमोट पास्ट, व्हेन द टू इवेंट्स are described in a long single sentence, then the first event will be described in the past perfect tense and the second event will be described in the simple past tense. अब 3 नंबर देखिए, the bell rang after I had reached school. After I had, पहले हम स्कूल पहुंच गए, बेल बाद में बजा। तो स्कूल का पहुंचना पहले हुआ है, बेल का बजना बाद में हुआ है, क्योंकि दोनों का पास्ट इवेंट में डिस्क्राइब किया, दोनों का पास्ट टेंस में डिस्क्राइब किया गया। इसलिए फर्स्ट जो इवेंट है रीचिंग स्कूल, जो फर्स्ट, ये जो पहला जो काम हुआ है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हैं, और रिंगिंग ऑफ द बेल जो सेकंड इवेंट है इसको सिंपल पास्ट में लिखे हैं। नंबर 4, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। अब यहां पर डन जो है पहले हुआ है, थैंक यू बाद में दिया गया है, थैंक्स बाद में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ही थैंक्ड मी, दिस इज इन द सिंपल पास्ट, और आई हैड डन ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है जो कि पहले हो चुका है। नंबर 5, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो फिल्म पहले स्टार्ट हो गया है और हम लोग बाद में पहुंचे हैं। तो दिस एक्शन स्टार्टेड इन द फर्स्ट एंड रीचिंग द सिनेमा हॉल टुक प्लेस आफ्टर दिस। तो दो पास्ट इवेंट में जो पहले होगा उसको हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो बाद वाला जो इवेंट होगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन इसको याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस ये दोनों का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे एक साथ जब एक लॉन्ग सेंटेंस हो, उसमें एक टुकड़ा जो है सिंपल पास्ट में हो और दूसरा टुकड़ा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। तो इसमें पहले याद रखिएगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू नरेट टू पास्ट इवेंट्स या टू पास्ट एक्शंस, इफ वन ऑफ देम
happened first, then write it in the past perfect tense, and the second action to be written in the simple past tense. तो rule क्या हुआ देखिए, when two actions happened in the past, when two actions happened in the past, दोनों ही एक्शन है जो पास्ट में हुआ है, तो रूल क्या हुआ, द अर्लियर एक्शन एंड द फर्स्ट एक्शन विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, एंड द लेटर एक्शन, जो बाद वाला एक्शन है, दैट विल बी इन द सिंपल पास्ट टेंस. ये है आपका रूल सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में. लेकिन आप देखिएगा कि जब भी कोई आप लेसन पढ़ते हैं अंग्रेजी का जो कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो आप गौर करेंगे तो देखिए आपको ये नजर आएगा कि मतलब जितने भी उसमें सेंटेंसेस है वो ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको लिखा हुआ पाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में उसी वक्त मिलेगा जब इस तरह का सेंटेंसेस होगा. तो आप जब भी कोई पास्ट इवेंट को नरेट करें, व्हेन यू नरेट अ पास्ट इवेंट और व्हेन यू राइट अ पास्ट इवेंट, first use simple past tense. Past perfect tense is rarely used, or on less occasions they are used. So all this was about simple past tense and past perfect tense. I hope you have got the lesson very well. Thank you very much.